پاکستان کا ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ میزائل 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مقصد آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی صلاحیتوں کو جانچنا ہے۔ کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ، اسٹریٹجک پلانز ڈویژن اور آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے سینئر افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیفز کی بھی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 3 مختلف کارروائیاں، 5 خارج ہلاک، 2 گرفتار۔ باجوڑ میں کارروائی کے دوران 3 خارجیوں کو ہلاک کیا گیا۔ انتہائی مطلوب خارجی فرید اللہ بھی شامل۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دوسیلی میں 2 خارج ہلاک۔ محمد میں انتہائی مطلوب خارجی لال امیر عرف ابراہیم کو گرفتار کر لیا گیا۔ کارروائیاں 30 اپریل اور 1 مئی کو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں کی گئیں۔ ISPR صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خارجیوں کو ہلاک اور گرفتار کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر عرفان نذیرالو کی ملاقات۔ ترکیہ کی حمایت دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور گہرے برادرانہ تعلقات کی عکاس ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی اشتعال انگیز کارروائیوں کے باوجود پاکستان کا رد عمل ذمہ دارانہ رہا ہے۔ بھارت پہلگام واقعے میں پاکستان ملوث ہونے کا کوئی بھی ثبوت دینے میں ناکام رہا ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ ترک سفیر کا جنوبی ایشیا میں امن کے لیے تحمل سے کام لینے پر زور۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی یونان کے وزیر خارجہ جورگیرا پیٹراٹس سے ٹیلی فون پر بات چیت، علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ نائب وزیر اعظم نے بھارت کے الزامات کو مسترد کر دیا، علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ یونان کے وزیر خارجہ کا کشیدگی کو روکنے اور امن و استحکام کے لیے صبر و تحمل کی اہمیت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور عالمی پیش رفت پر قریبی روابط کو برقرار رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کا بھارت کے بے بنیاد الزامات، سنتاس معاہدے کی معطلی پر شدید تشویش کا اظہار۔ محمد اسحاق ڈار کا پہلگام واقعے کی آزاد اور شفاف تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ۔ سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے سہولت کی پیشکش۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف DGI/SPR کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی بھارت میں بند کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر نے عالمی میڈیا پر بھارت کے ریاستی جبر، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کشمیری عوام کی آواز کو دبانے کی کوششوں کو بے نقاب کیا تھا۔ رد عمل میں بھارت نے ان کا آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کر دیا۔ بھارت کی الزام تراشیاں صرف جھوٹ پر مبنی ہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ بھارت اگر پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے جواب میں کارروائی کرے گا تو اسے 2019 کی طرح سخت جواب ملے گا۔ یہ کسی بھی خود مختار ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے دفاع میں کارروائی کرے۔ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ضروری ہے۔ پاکستان کے ہائی کمشنر برائے برطانیہ ڈاکٹر محمد فیصل کا بھارت کے فالس فلیگ آپریشن پر سخت رد عمل۔ بھارت کی حکمران BJP اور اپوزیشن کانگریس آپس میں گتھم گتھا۔ کانگریس رہنما مشرقی پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ نے بالاکوٹ سرجیکل سٹرائکس کا ثبوت بھی طلب کر لیا۔ آج تک بالاکوٹ سرجیکل سٹرائکس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ پاکستان میں کہاں حملے ہوئے، کہاں لوگ مارے گئے، کیا اگر ہمارے ملک میں بم گرے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ سردار چرنجیت سنگھ چنی۔ بھارتی سرجیکل سٹرائک کا جھوٹ، سابق جرنیلوں کے بعد بھارتی تجزیہ نگاروں نے بھی راز فاش کر دیا۔ جھوٹا سرجیکل سٹرائک بھارت کی عوامی تسلی کے سوا کچھ نہیں۔ سرجیکل سٹرائک کا ڈھونگ داخلی سیاست کے لیے رچایا گیا۔ بھارتی فوج کی سرجیکل سٹرائک محض پروپیگنڈا ہے۔ یونین چارٹر کے تحت بھارت سرحد پار ہی نہیں کر سکتا تھا۔ بھارتی تجزیہ نگار۔ بھارتی فوج کا غیر قانونی اور جبراً حراست میں رکھے گئے معصوم پاکستانیوں کے فیک انکاؤنٹرز کا منصوبہ۔ مختلف جیلوں میں قید افراد کو ماورائے عدالت قتل کے بعد دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا کو پہلے سے ہی ان افراد کی لاشیں، پلانٹڈ ہتھیار کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کر دی جائیں گی۔
भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा, सिक्योरिटी जराए। पाकिस्तान और ट्रंप फैमिली का क्रिप्टो इत्तेहाद, आलमी सतह पर बड़ी पेशरफ्त। डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की जेर मिल्कियत 60% शेयर रखने वाली कंपनी का पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल से मुआहिदा ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत के साथ कशीदगी अपने उरूज पर है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात भी की थी। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की कॉल पर वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा, पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी की शिरकत। मुजाहरीन की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पहलगाम वाकया भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो वक्त के साथ साबित हो रहा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार है, लेकिन सिखों और कश्मीरियों के हुकूक दबा रहा है। मकबूजा वादी में बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जा रहा है। मुजाहरीन आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मीडिया वर्कर्स को खराज तहसीन और उन बहादुर मर्दो ख़ातीन सहाफ़ियों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं जो अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान हो गए। हमारा आइन राय और इजहार की आज़ादियों का अमीन और ज़ामिन है। जदीद दुनिया में आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि मीडिया को झूठ, फेक न्यूज़, प्रोपेगंडे, गैर मुल्की एजेंडों और सियासी मफादात की तकमील के लिए इस्तेमाल ना होने दिया जाए। प्रेस फ्रीडम डे पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय आबी जाहरियत, बेबुनियाद इल्जाम तराशियों का हक़ाइक़ और सच से मुकाबला किया। जंगी माहौल पैदा करने के मज़मून भारतीय मकासद को खाक में मिला दिया। हक़ाइक़ की फराहमी की जद्दोजहद में सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ तारीख का सुनहरी बाब। सहाफ़त के आलमी दिन पर सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीडिया के ज़िम्मेदाराना किरदार को ख़राज तहसीन। मरकज़ी सदर जमीयत अहले हदीस सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर इंतकाल कर गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। साजिद मीर 2 अक्टूबर 1938 को सियालकोट में पैदा हुए। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की। मरहूम साजिद मीर एक बड़ी दीनी, इल्मी और सियासी शख्सियत थे। प्रोफेसर साजिद मीर 2003 से 2025 तक मुसलसल सेनेटर रहे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अमीर जमीयत अहले हदीस प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम के बुलंदी दराजात, अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। साजिद मीर अहले बसीरत, सियासी शख्सियत और दीनी स्कॉलर थे। उनकी रहलत से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में पैदा खला शायद ही कभी पुर हो सके। मुझ समेत पूरी कौम की हमदर्दियाँ साजिद मीर के अहले खाना के साथ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। इदारे में इस्लाहात से मुताबिक इजलास की इस्तदारत की। नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब। पुलिसिंग निज़ाम को बेहतर बनाने में नेशनल पुलिस ब्यूरो का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। नेशनल पुलिस ब्यूरो को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक भरपूर तरीके से फ़ाल करना होगा। मोहसिन नकवी। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क और एटमी ताकत है। पाक फौज, फजाइया और नेवी मुल्की सरहदों की मुहाफिज हैं। पायदार तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान एक नजरिए के तहत कायम होने वाला मुल्क है। बरामदात के फरोग पर तवज्जो देना होगी। हम नौजवान नस्ल को बेहतर तरबियत फराहम कर रहे हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का लाहौर में बजट सेमिनार से खिताब। अपनी ज़मीन अपना घर के तहत 2000 प्लॉट दिए जाएंगे। अपनी ज़मीन अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। बेघर और बेज़मीन अफराद को प्लॉट देने का मंसूबा शुरू किया है। पंजाब के मुस्तहिक़ और नादार अफराद के लिए काम जारी रहेगा। घरों की तामीर के लिए गए कर्जे की किस्तें वापस आना शुरू हो गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अपनी ज़मीन अपना घर ई पोर्टल की इफ्ताही तकरीब से खिताब। पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर कश्मीरियों पर हमले हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत तशवीशनाक हैं। कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है।
हुर्रियत क़यादत को ज़बरदस्ती और गैर कानूनी तरीकों से जेलों में डाला जा रहा है। अक़वाम आलम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मशाल मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिंध तास आबी मुआहदे के खिलाफ वर्जी, भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग, पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और जम्मू और कश्मीर मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे। पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलव्वस नहीं, मोदी सरकार की साजिश है। भारतीय कांग्रेस के साबिक वजीर सैफुद्दीन सोज ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया। मैं अपने सिख भाईचारे दे सारे ही पंजाबियां नूं बेनती करदा कि तुसी किसी भी तरीके दे नाल जे कोई संभाविक जंग लगदी है ते उहदे विच जिहड़ा है वो हिस्सा ना लो। भारत हमेशा से सिखों का दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ सिखों को इस्तेमाल करता रहा है। भारतीय फौज ने पंजाब में हमेशा सिखों पर वहशियाना मज़ालिम किए। मशरक़ी पंजाब के सिख पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जाहिरियत का किसी सूरत हिस्सा न बने। जनरल सेक्रेटरी वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट मनप्रीत सिंह। पूरी कौम मुत्तहिद है और पाक फौज के साथ खड़ी है। हमारी मुसल्लह अफवाज भारत की जारहियत और मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगी। वफाकी हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है और हमेशा मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया है। ई खिदमत मरकज़ में बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा की बहावलपुर ई खिदमत मरकज़ आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मुल्क की तरक्की के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। हमारा मकसद छोटे कारोबारी लोगों को रहनुमाई फराहम करना है ताकि वो मजीद आगे बढ़ सकें। स्मेडा में माइक्रो कैटेगरी भी शामिल कर दी गई है। 3 करोड़ से नीचे वाला कारोबार भी इसमें आ गया है। यूथ हमारा असासा है। नौजवानों को कारोबार के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सनअत व पैदावार हारून अख्तर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी आज़मीन हज की मदीना मुनव्वरा में आमद का सिलसिला जारी। 35 परवाज़ों से 8,890 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। आज मजीद 12 परवाज़ों से 3300 आज़मीन किराम मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। आज़मीन हज के काफ़िले 7 मई को मक्का मुकरमा रवाना होंगे। पहला फ़र्ज उम्रा अदा करेंगे। गजा पर गुज़श्ता 24 घंटे में इजरायली फोर्सेस के हमलों में 43 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। वस्ती गजा में एक फलाही तंजीम पर इजरायली फोर्सेस की बमबारी में 5 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हुए। इजरायली मुहासरे के बायस खुराक का ज़ख़ीरा तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। अद्वियात की शदीद किल्लत, तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस भी लाखों फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में। भारत ने हमें हालत जंग में धकेल दिया है। पाकिस्तान का एहतराम सबसे ज़्यादा मुक़द्दम है। हमने हमेशा तरक्की के साथ मोहब्बत और प्यार का दर्स दिया। भारत को हमेशा से इल्ज़ाम तराशी की आदत है। मकबूजा कश्मीर के लोग दलेर और बहादुर हैं। मुल्क पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। कश्मीरी सहाफ़ी ने पहलगाम हमले पर भारतीय मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी का भारतीय मीडिया को करारा जवाब। पानी बंद करने की आप महज बातें ही कर रहे हैं, अभी तक पानी बंद क्यों नहीं किया? पुलवामा ड्रामे में भी आपको 700 करोड़ का नुकसान हुआ था। कश्मीरी सहाफ़ी ने भारतीय एंकर को खरी खरी सुना डाली। कश्मीर के बुजुर्ग ने फॉल्स फ्लैग पर भारतीय मीडिया को आईना दिखा दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद कश्मीर के लोगों की भारतीय फौज पर सख्त तनकीद। भारत ने 11 लाख फौज कश्मीर में तैनात कर रखी है। इतनी बड़ी फौज के बावजूद पहलगाम वाक़या हुआ है। ये सब पैसे का खेल है। ये काम वही इंसान करेगा जो लालची होगा। कश्मीरी बुजुर्ग। पाकिस्तान सुपर लीग में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल होंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होने वाला मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स पर आपको बराह रास्त दिखाया जाएगा।
मैच के दौरान चाइल्ड कैंसर से आगाही का दिन भी मनाया जाएगा। खिलाड़ी गोल्डन कैप्स के साथ गोल्डन रिबन पहनेंगे। पीला लिबास पहनकर स्टेडियम आने वाली फैमिलीज को एजाजी पासेस दिए जाएंगे। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का 22वां मैच। पेशावर ज़ल्मी की इवेंट में तीसरी कामयाबी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा दिया। ज़ल्मी ने 144 रन का हदफ 17वें ओवर में 4 विकेटों पर हासिल किया। कप्तान बाबर आजम ने 53 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स के लिए। मां सदाकत ने 55 रन बनाए। PSL के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। हिस्पानिया में ATP मास्टर्स 1000 मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट फाइनल बर्तानिया की जैक ड्रेपर और नॉर्वे की केस्पररूट के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में जैक ड्रेपर ने इटली के लोरेंजो मसीटी को शिकस्त दी। केस्पररूट ने अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरेंडोलो को हरा दिया। और चीन में सुदीर्घन बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। मेज़बान चीन, इंडोनेशिया, जनूबी कोरिया और जापान ने लास्ट 4 में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में दिफाई चैंपियन चीन ने मलेशिया, जापान ने ताइवान को हराया। इंडोनेशिया ने थाईलैंड और जनूबी कोरिया ने डेनमार्क को मात दी। सेमीफाइनल में चीन का मुकाबला जापान, इंडोनेशिया का जनूबी कोरिया से होगा।